حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، لیکن قرآن میں صرف 25 کے نام بیان کیے گئے ہیں، اور ہم ان پیغمبروں کے بارے میں قرآن، حدیث اور پہلی آسمانی کتابوں جیسے تورات اور انجیل سے کچھ بنیادی معلومات جانتے ہیں۔ مگر اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پیغمبر کس قوم کی طرف بھیجے گئے، وہ کس علاقے میں رہے، اور آج کے نقشے میں وہ جگہ کہاں واقع ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک مختصر مگر نہایت معلوماتی سفر کریں گے، جس میں جانیں گے کہ قرآن میں مذکور یہ 25 پیغمبر کون تھے، کہاں بھیجے گئے، اور آج دنیا کے نقشے پر ان کے مقامات کہاں موجود ہیں۔ یہ سب پیغمبر انسان تھے، بالکل ہماری طرح۔ ان کے بھی گھر والے تھے، خواہشات تھیں، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے مشن کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام قرآن میں محفوظ کر دیے، اور ان سب پر سلامتی ہو۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ کے حکم سے انہیں مختلف اقسام کی مٹی سے بنایا گیا۔ فرشتوں نے حکم الہی سے اس مٹی کو گوندھا اور ایک مخصوص شکل دی۔ 40 سال تک وہ مٹی پڑی رہی، پھر سوکھ کر سخت ہو گئی، اور محرم کی 10 تاریخ جمعہ کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور انہیں تمام چیزوں کا علم سکھایا۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا، اور مردود ہو کر جنت سے نکال دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی شادی حوا علیہ السلام سے ہوئی، جو جنت میں پیدا کی گئی تھی۔ دونوں کچھ عرصہ وہاں رہے، مگر منع کیے گئے درخت سے کھانے کی وجہ سے زمین پر بھیج دیے گئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور سچی توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ آدم اور حوا علیہ السلام کچھ عرصہ جدا رہے، پھر دونوں میدان عرفات میں ملے۔ دونوں نے مل کر بیت اللہ تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ انہیں ایک مختصر صحیفہ دیا گیا جو 10 صفحات پر مشتمل تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو ایمان، عبادت اور علم کی تعلیم دی۔ اس زمانے کے لوگ شہروں میں رہتے تھے اور مختلف ہنر جانتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل مشہور ہیں۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا، جو انسانیت کا پہلا قتل تھا، اور انسانوں کی نسل انہی دونوں بیٹوں کی اولاد سے آگے بڑھی۔ بعض روایات کے مطابق آدم علیہ السلام تقریباً 960 سال تک زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی اولاد دین حق پر قائم رہی، مگر وقت کے ساتھ کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اور یوں نئے انبیاء بھیجے گئے تاکہ انسانوں کو سیدھی راہ دکھائیں۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض اسے بیت المقدس کے قریب بتاتے ہیں، کچھ روایات اسے منا یا عرفات کے علاقے میں بتاتی ہیں۔ احادیث میں ان کے قد کا ذکر بھی آتا ہے، جو 30 سے 40 میٹر تک بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام قرآن میں ذکر ہونے والے جلیل القدر نبی ہیں۔ روایات کے مطابق ان کے کئی خاص اوصاف تھے۔ وہ آدم علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 30 چھوٹے صحیفے عطا کیے اور بے شمار علوم سکھائے۔ ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال یا پتے پہنتے تھے، مگر ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو کپڑے سینا سکھایا، شہر بسانا سکھایا، اور معاشرت کا نظام ترتیب دیا۔ وہ بہتر زبانیں جانتے تھے اور ہر قوم کو اس کی اپنی زبان میں دین حق سکھاتے تھے۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، علم پھیلایا، اور ستاروں کی چال اور آسمان کی حرکتوں کا مطالعہ کیا۔ اسی لیے انہیں علم و فن کا نبی کہا جاتا ہے۔ وہ بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے اور وہاں طویل عرصہ اللہ کا دین سکھاتے رہے۔ سورہ الانبیاء میں انہیں صابر، صدیق اور نیک نبی کہا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھایا۔ بہت سے علماء کے مطابق وہ بغیر موت کے آسمان پر اٹھائے گئے، اور کئی روایات میں انہیں چوتھے آسمان پر مقیم بتایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف۔ نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے بعد مبعوث کیے گئے۔ اسلامی مورخین کے مطابق انہیں عراق کے موصل علاقے کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی قوم میسوپوٹیما کے لوگ تھے جو بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہاں ظلم، بے حیائی اور نافرمانی عام تھی۔ نوح علیہ السلام کو تقریباً 50 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن چند ہزار سے بھی کم لوگ ایمان لائے۔ زیادہ تر لوگوں نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور تکلیفیں دی۔ جب نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا تو انہوں نے بارش اور سیلاب کے عظیم عذاب کی خبر دی۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک بہت بڑا جہاز تیار کیا۔ اس میں مومنین کے ساتھ ہر جانور کا ایک نر اور ایک مادہ سوار کیا۔ پھر طوفان نوح آیا، آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہوئی، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے اور ساری بستی ڈوب گئی۔ طوفان 6 ماہ تک جاری رہا۔ آخر میں وہ جہاز کوہ جودی پر ٹھہر گیا۔
नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा अजाब से बचने के लिए जहाज पर ना चढ़ा और काफिरों के साथ डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफिस आगे चलकर दुनिया की बड़ी कौमों के जद बने। तारीख़ इस्लाम के मुताबिक साम की नस्ल में अरब, बनी इसराइल और फारसी अक़वाम आए। हाम की नस्ल से अफ्रीकी, मिस्री और हबशी अक़वाम पैदा हुई, जबकि याफित की नस्ल से तर्क, यूनानी, रूसी, मंगोल, चीनी, हिंदी और यूरोपीय अक़वाम वजूद में आए। ये सब बातें इब्ने कसीर, तबरी और इब्ने खल्दून जैसे मुअर्रिखीन के कामों में महफूज हैं। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम भी कहा जाता है। वो तकरीबन 1000 साल तक जिंदा रहे। कुरान में उनका बार बार जिक्र आता है और उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा करार दिया गया है। तीसरे नंबर पर आते हैं हूद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल में से थे। उन्हें कौम आद की तरफ भेजा गया, जो यमन 3 के अहकाफ इलाके में रहती थी। आद के लोग तिजारत करते थे, वक्त के साथ बहुत ताकतवर हो गए। ऊंची इमारतें और मजबूत महलात बनाए, लेकिन गुरूर में डूबकर गुमराह हो गए। उन्होंने बुतों की पूजा शुरू की, कमजोरों पर जुल्म करते, तकब्बुर में डूबे रहते और तिजारत में धोखा देते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने और तकब्बुर छोड़ने की दावत दी, मगर उन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने पहले कहत के जरिए उन्हें खबरदार किया, फिर एक निहायत गर्म, तेज और मुसलसल चलने वाली आंधी भेजी, जिसने पूरी कौम को बर्बाद कर दिया। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले चंद लोग बच गए। बाद में वो मक्का में आकर बसे और वहीं वफात पाईं। अब आते हैं सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ। सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ मबूस किए गए। ये कौम बुतपरस्त थी, टेक्नोलॉजी और तामीरात में बहुत माहिर थी। पहाड़ों को तराश कर घरों और महलात की शक्ल देती थी। उनका इलाका आज के सऊदी अरब के मदाइने सालेह के नाम से मारूफ है। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, मगर उन्होंने जिद करते हुए कहा कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो उस चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी ऊंटनी पहाड़ से जिंदा निकल आई। ये अल्लाह की अजीम निशानी थी। इसका दूध इतना ज्यादा था कि पूरी कौम के लिए काफी होता था, मगर सरदारों को डर था कि इस मोजिज़े की वजह से सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानी जाएगी और उनकी सरदारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने साजिश करके रात के वक्त उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानी की तौहीन थी। फिर उन्हें 3 दिन की मोहलत मिली। तीसरे दिन एक जबरदस्त चीख और जलजला आया और पूरी समूद कौम हलाक हो गई। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम और चंद मोमिनीन बच गए। कौम समूद की तबाही कुरान में एक बहुत बड़ा सबक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 5 अव्वल अज़्म पैगंबरों में से हैं। उन्हें बाबल की कलदानी कौम की तरफ भेजा गया, जो शदीद बुतपरस्त थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद के सबसे बड़े अलमबरदार थे। एक बार जब कौम मीला मनाने गई तो वो बुतखाना में दाखिल हुए और तमाम बुत तोड़ दिए। सिर्फ सबसे बड़े बुत को सालिम छोड़कर उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब कौम वापस आई तो पूछा, ये किसने किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिकमत से जवाब दिया कि शायद बड़े बुत ने किया हो। अगर ये बोल सकते हो तो पूछ लो। वो दलील के मुकाबले में खामोश हो गए, मगर फिर भी गुस्से में आकर एक बहुत बड़ी आग जलाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी और सलामती वाली हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आए। इसके बावजूद कौम ने उनका इनकार किया। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की और सारा अलैहिस्सलाम के साथ पहले मिस्र फिर फलस्तीन पहुंचे। मिस्र में उन्हें हाजरा अलैहिस्सलाम मिली, जिनसे उन्होंने निकाह किया। बहुत साल बाद हाजरा अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरब अक़वाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली, जबकि इसहाक अलैहिस्सलाम से यहूदी और बनी इसराइल के अंबिया आए। यानी हकीकत में अरब और यहूदी दोनों इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के बायस आपस में भाई हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा तामीर किया, हज के मनासिक सिखाए और लोगों को तौहीद की दावत दी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने के लिए ले गए, लेकिन अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल न की। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने से रोक दिया। अस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए, मैं सब्र करूंगा। जब छुरी गले पर चलने लगी तो अल्लाह ने रोक दिया और एक जानवर भेजा। हम आज ईद उल अज़हा इसी सुन्नत की याद में मनाते हैं। अब आते हैं लूत अलैहिस्सलाम की तरफ।
लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। वो बाबल से शाम की तरफ हिजरत के बाद कौम सदूम की तरफ मबूस किए गए। ये इलाका आज के उर्दुन और बहरा मुर्दार के आसपास है। ये वाक़या नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के चंद सदियों बाद तकरीबन 2000 कब्ल मसीह में पेश आया। लूत अलैहिस्सलाम ने मोजज़ात दिखाए। साफ आसमान के बावजूद बारिश बरसाई, पत्थर से पानी निकाला, मगर उनकी कौम बदतरीन बुत परस्ती और बदफेली में मुब्तला थी। ये दुनिया में पहली कौम थी जिसने खुल्लम खुल्ला और ज़बरदस्ती मुर्दों के साथ बदफेली की। वो खूबसूरत नौजवानों को अपनी मलकियत समझते थे। कुरान कहता है, तुम मर्दों के पास जाते हो, रास्ते रोकते हो और अपनी मजलिसों में फहाशी करते हो। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत दी, मगर उन्होंने इनकार किया, धमकियां दी और शहर से निकालने की बात की। एक दिन 3 खूबसूरत मेहमान आए जो दरअसल फरिश्ते थे। कौम उन पर हमला करने आई। फरिश्तों ने कहा, रातों रात अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ। फजर के वक्त शहर उलट दिया गया। आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और पूरी कौम तबाह हो गई। इस्लाम में बदफेली की सजा इन्हीं वाकयात से इबरत के तौर पर बयान की जाती है। हाँ, अब बात करते हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम की। इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे थे। उनकी वालदा हाजरा अलैहिस्सलाम थी। बचपन में अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाजरा और इस्माईल को मक्का की बेआब-ओ-ग्याह वादी में छोड़ दें। पानी ना था। हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रहीं, दुआ करती रहीं, तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और जमजम का चश्मा फूट निकला, जो आज तक जारी है। इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे ख्वाब की बात की। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए, मैं सब्र करूंगा। जब छुरी चलने लगी तो अल्लाह ने एक मेंढा भेजा और फरमाया, हमने उस अजीम कुर्बानी का बदला अता कर दिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सब्र, इताअत और ईमान का नमूना है। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान दे। अब आते हैं इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ। इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे। उनकी वालदा सारा अलैहिस्सलाम थी। अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में औलाद दी। इसहाक अलैहिस्सलाम निहायत नेक, बुर्दबार और अल्लाह के मुती थे। उनकी नस्ल से बहुत से अंबिया आए, जिनमें याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम नुमायां हैं। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के वादे कभी झूठे नहीं होते। जब वक्त आए तो हर दुआ कबूल होती है। अब जिक्र करते हैं याकूब अलैहिस्सलाम का। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुजुर्ग नबी थे। वो बहुत साबिर और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले थे। उनके बेटों में यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा महबूब थे। भाइयों ने हसद में आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका। अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा और लिखा कि वो मुस्तकबिल में बड़े मकाम पर पहुंचेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें गम से सफ़ेद हो गईं, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने तो सारा खानदान वहां पहुंचा। याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई और वो अपने बेटे से मिलकर खुशी से भर गए। अब आते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी की तरफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में सूरज, चांद और 11 सितारे सजदा करते नजर आए। ये नबूवत की निशानी थी। भाइयों ने हसद में पहले कुएं में फेंका और फिर मिस्र में गुलाम बनाकर बेच दिया। वहां वो अजीज मिस्र के घर रहे। अजीज की बीवी ने बुरा इरादा किया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का खौफ रखते हुए इनकार किया और कैद का इंतखाब किया। जेल में उन्होंने 2 कैदियों के ख्वाब की ताबीर बताई। बैक्शा ने ख्वाब देखा जिसे सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सही समझाया कि 7 साल खुशहाली और 7 साल कहत आएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम खजाने के निगरान बने। जब कहत आया तो उनके भाई गल्ला लेने आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर जाहिर न किया। आखिर में हकीकत बताई और सबको मिस्र ले आए। उनके वालदैन ने भी आकर उन्हें सजदा ताज़ीमी किया, जो उस वक्त जायज़ था। यूं उनका ख्वाब पूरा हुआ। अब जिक्र करते हैं शुएब अलैहिस्सलाम का। शुएब अलैहिस्सलाम को मदीन की कौम की तरफ भेजा गया। ये लोग तिजारत करते थे, मगर नाप तोल में कमी, धोखे और जुल्म उनकी आदत बन चुकी थी। शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इंसाफ, सच्चाई और ईमानदारी की दावत दी, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। कहा कि शुएब, हम अपनी तिजारत अपने तरीके से करेंगे। आखिरकार अल्लाह का अजाब आया। एक खौफनाक चीख और जलजला ने पूरी बस्ती को तबाह कर दिया। सिर्फ ईमान वाले बच्चे। ये वाकया सिखाता है कि तिजारत में दयानत न हो तो अंजाम बर्बादी है। अब बात करते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम की। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के निहायत साबिर नबी थे। वो मालदार, इज्जत वाले और बड़ी औलाद के मालिक थे।
शैतान ने इजाजत मांगी कि उन्हें आजमाए। अल्लाह ने इजाजत दी तो एक के बाद एक मुसीबत आई। माल चला गया, जानवर मर गए, औलाद दुनिया से चली गई, फिर जिस्म पर नासूर बन गए, दोस्त और रिश्तेदार भी दूर हो गए। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन कभी ना छोड़ा, ना कोई शिकायत की, ना नाशुक्री की। बिल आखिर अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल की और फरमाया, अपने पांव जमीन पर मारो। एक ठंडा चश्मा निकाल आया। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उससे गुस्ल किया तो बीमारी गायब हो गई और जिस्म दोबारा ताज़ा और सेहतमंद हो गया। अल्लाह ने उनकी दौलत, घर और ख़ानदान भी वापस अता किया, बल्कि पहले से कई गुना ज़्यादा दिया। ये वाक़या सब्र का सबसे बड़ा दर्स है कि मुसीबत में भी अल्लाह पर भरोसा रखो, शिकायत ना करो और यकीन रखो कि दुआ हर तकलीफ को दूर कर देती है। अल्लाह हमें अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा कामिल सब्र अता फरमाए। हज़रत ज़ुल्किफ़ुल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी या बहुत बड़े नेक इंसान थे। उलमा में इख्तान है, मगर कुरान में उनका जिक्र 2 मकामात पर आया है और उन्हें साबिर और साले बंदों में शुमार किया गया है। एक रिवायत के मुताबिक उनके कबीले में एक निहायत नेक शख्स था जो रोज़ाना 100 लोगों की ज़रूरतें पूरी करता था। जब वो फौत हुआ तो अल्लाह ने हज़रत ज़ुल्किफ़ुल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम उसकी जिम्मेदारी उठाओ। उन्होंने कसम खाई कि मैं रोज़ 100 लोगों की मदद करूंगा और कभी गुस्सा नहीं करूंगा। एक दिन शैतान ने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए एक झूठा मुकदमा लाया और मुसलसल रुकावटें डालकर उन्हें तंग करता रहा। इतनी देर बाद हज़रत ज़ुल्किफ़ुल अलैहिस्सलाम का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने गुस्से में कसम खाई कि सुबह उस शख्स को सजा दूंगा। रात के वक्त एक फरिश्ता आया और उन्हें समझाया कि आपने अपनी कसम तोड़ दी है। हज़रत ज़ुल्किफ़ुल अलैहिस्सलाम फ़ौरन नादिम हुए, तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें नबूवत अता फरमाई। उनका नाम ज़ुल्किफ़ुल इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई और उसे पूरा किया। ये वाक़या सिखाता है कि जिम्मेदारी और कसम बहुत बड़ी अमानत है और गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सब्र ही कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह हमें अपनी ज़बान और गुस्से को काबू में रखने की तौफीक दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे जिन्हें नेनवे के लोगों की तरफ भेजा गया, जो आज के इराक के एजुके के करीब आबाद थे। उनकी कौम गुनाहों में डूबी हुई थी, शिर्क, जुल्म और नाफरमानी आम थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया कि अल्लाह की तौहीद कबूल करो, गुनाहों से तौबा करो, वरना अजाब आएगा। मगर कौम ने मजाक उड़ाया, तकजीब की और हट धर्मी दिखाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को शदीद रंज हुआ और उन्होंने कौम छोड़ दी। वो एक कश्ती पर सवार हुए, मगर तूफान आ गया और कुरान के बयान के मुताबिक कुरा निकाला गया तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर निकल आए थे। उन्होंने खुद को समंदर में डालने की इजाजत दी। फिर एक अजीम मछली ने उन्हें अल्लाह के हुक्म से निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा, समंदर की गहराई और चारों तरफ खामोशी थी। वहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो लाजवाल दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। मछली ने उन्हें साहिल पर अगल दिया। अल्लाह ने उन्हें फिर तंदुरुस्ती दी और दोबारा अपनी कौम की तरफ भेजा। इस बार नेनवे वालों ने हकीकत देखकर सच्ची तौबा की और अल्लाह ने अजाब टाल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए तो पूरी कौम ईमान ला चुकी थी। ये वाकया हमें सिखाता है कि नबी भी इंसान होते हैं और उनसे भी जल्दबाजी हो सकती है, मगर तौबा हर गलती को मिटा देती है। दुआ कभी रद्द नहीं होती और सब्र हमेशा कामयाबी देता है। अल्लाह हमें यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा सच्चा यकीन और सब्र अता फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे ज्यादा जिक्र होने वाले नबी हैं। आप बनी इसराइल के रहनुमा और कलीमुल्लाह थे, क्योंकि अल्लाह ने आपसे बराह रास्त कलाम फरमाया। आप फिरौन के दौर में पैदा हुए, जब फिरौन ने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी खौफ से आपकी वालदा ने आपको एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में छोड़ दिया। फिरौन की बीवी आसिया ने आपको उठाया और अपनी औलाद की तरह पाला। जवानी में एक वाकया हुआ कि गलती से एक मिस्री शख्स आपके हाथों मर गया। आपने फौरन शहर छोड़ा और मदीन की तरफ हिजरत की। वहां निकाह किया और कई साल रहे। एक दिन आपने तौर पहाड़ की तरफ रोशनी देखी और वहां अल्लाह ने आपसे कलाम फरमाया कि मैं अल्लाह हूं,
और मैंने तुम्हें अपना नबी मुंतखब किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र वापस आए और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन को दावत दी कि बनी इसराइल को आज़ाद करो। लेकिन फ़िरौन ने तकब्बुर किया और इनकार कर दिया। अल्लाह ने 9 मोजज़े भेजे। मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदा बन गया, हाथ रोशन हो जाता। तूफान, टिड्डियों, खून और कहत जैसे अजाब आए, मगर फ़िरौन ना माना। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल रातों रात निकल जाएं। फ़िरौन लश्कर के साथ पीछे आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दरिया पर असा मारा तो वो 2 हिस्सों में बट गया। बनी इसराइल गुजर गए, मगर फ़िरौन और उसका लश्कर पानी में डूब गया। तौर पहाड़ पर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई। 40 दिन की गैर मौजूदगी में कौम ने सामरी के बहकाने पर सोने का बछड़ा बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो सख्त नाराज हुए, मगर फिर अल्लाह से कौम की माफ़ी की दुआ की और अल्लाह ने रहम फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मोजज़ात, सब्र, क़यादत और अल्लाह से क़ुर्ब का रोशन नमूना है। अल्लाह हमें इन जैसा मजबूत ईमान अता फरमाए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक नबी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। वो बनी इसराइल के मुअज़्ज़ज़ घराने से थे और निहायत फसीह, नर्म दिल और बेहतरीन गुफ्तगू करने वाले थे। जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की और हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। दोनों भाई मिलकर फ़िरौन के दरबार में हक की दावत लेकर पहुंचे। हारून अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत से बात की, मगर फ़िरौन ने तकब्बुर किया। मोजज़ात के तमाम मराहिल में हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। असा, रोशन हाथ, अजाब और बनी इसराइल की रहनुमाई, हर मकाम पर दोनों इकट्ठे थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तौर पहाड़ पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम को कौम का निगहबान बनाया। उस दौरान कौम ने सामरी के बहकाने से बिछड़े की इबादत शुरू कर दी। हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत रोका, डराया कि ये गुनाह है, मगर वो अकेले थे और कौम के शर से डर कर सख्ती नहीं कर सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर बहुत गुस्सा हुए, मगर अल्लाह ने बता दिया कि हारून अलैहिस्सलाम ने पूरी कोशिश की थी। फिर दोनों ने दुआ की और अल्लाह ने कौम को माफ़ फरमाया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम एक वफ़ादार भाई, बेहतरीन वज़ीर और निहायत नर्म दिल नबी थे। उनकी ज़िंदगी सिखाती है कि मदद करो, सब्र से समझो और अकेले भी हक़ के लिए खड़े रहो। अल्लाह हमें ऐसा भाई और मददगार अता फरमाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह थे। वो बनी इसराइल के बुज़ुर्ग और निहायत खूबसूरत आवाज़ वाले थे। जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ झूम उठते और परिंदे रुक कर सुनते। जवानी में वो चरवाहे थे। एक दिन जालूत नामी जंगजू ने बनी इसराइल पर हमला किया। सब खौफज़दा थे, मगर दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा पत्थर लिया, गोभन में रखा और मारा तो जालूत ज़मीन पर गिर पड़ा। अल्लाह ने उन्हें फतह दी और बादशाहत अता फरमाई। उनके दौर में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम हुआ। रोज़ 100 नफिल पढ़ते, आधा दिन इबादत और आधा दिन सल्तनत के उमूर चलाते। अल्लाह ने उन पर ज़बूर नाजिल फरमाई, जो अल्लाह की आसमानी किताबों में से एक है। उनकी ज़िंदगी अदल, इबादत, तौबा और खूबसूरत तिलावत का रोशन नमूना है। उनकी नस्ल से कई अंबिया पैदा हुए। अल्लाह हमें दाऊद अलैहिस्सलाम जैसा आदिल और तौबा गुजार दिल अता फरमाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। बचपन ही से अल्लाह ने उन्हें हिकमत, दानिश और वसी बादशाहत अता फरमा दी थी। एक मर्तबा 2 औरतें बच्चे के झगड़े के साथ आईं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बच्चे को तलवार से 2 हिस्सों में कर दिया जाए। असल माँ फौरन चीख उठी कि बच्चा दूसरी को दे दो, मगर उसे नुकसान न पहुंचे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी से पहचान लिया और बच्चा उसे दे दिया। ये उनकी हिकमत का पहला बड़ा सबूत था। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार मोजज़ात दिए। हवा उनके ताबे थी, जिन्नात और जानवर उनकी फौज में शामिल थे, परिंदों की ज़बान समझते थे। एक बार सबा की मलका बिल्कीस ने उन्हें ख़त भेजा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन से उसका तख्त पलक झपकते में मंगवा लिया और बिल्कीस ईमान ले आई। उनकी बादशाही अमन, अदल, शुक्र और इबादत से भरी हुई थी। रोज़ हज़ारों रकात नमाज पढ़ते, लोगों के मसाइल हल करते और उन्होंने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी। आखिर उम्र में इबादत करते हुए वफ़ात पाई। लकड़ी पर टेक लगाकर खड़े थे। जिन काम करते रहे, जब लकड़ी दीमक से खा गई तो आप गिर गए।
और तब सबको हकीकत मालूम हुई। उनकी जिंदगी सिखाती है कि सल्तनत अल्लाह की अता है, उसे अदल से चलाओ, शुक्र करो और इबादत कभी न छोड़ो। अल्लाह हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा अदल और शुक्रगुजार दिल अता फरमाए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक नबी थे। वो बनी इसराइल के ज़माने में लबनान के करीब भेजे गए। लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे और ख़ास तौर पर बाल नाम के बुत की पूजा करते थे। उन्होंने सख्त पैगाम दिया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो वरना सख्त अजाब आएगा। लोगों ने मजाक उड़ाया। बादशाह अहब और उसकी बीवी इजाबिल ने उन्हें कत्ल की धमकी दी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने मोजज़ा दिखाया, बाल के पुजारियों से मुकाबला किया। दोनों ने कुर्बानी रखी। पुजारियों ने बाल से आग मांगी मगर कुछ न हुआ। इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो आसमान से आग उतरी और कुर्बानी जल गई। लोग हैरान रह गए और बहुत से ईमान ले आए। लेकिन बादशाह फिर शिर्क में पड़ गया। अल्लाह ने सख्त कहत भेजा। 3 साल तक बारिश न हुई और लोग भूख से तड़पने लगे। आखिरकार इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बारिश बरसने लगी और जमीन हरी हो गई। फिर अल्लाह ने उन्हें इज्जत के साथ उठा लिया। आग के रथ पर सवार होकर आसमान की तरफ ले जाया गया। ये वाक़ा सिखाता है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह के नबियों की दुआ में अजीब तासीर होती है। अल्लाह हमें शिर्क से बचाए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक नबी और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के जानशीन थे। जब इलियास अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए तो इलियास अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के रहनुमा बने। वो इल्म वाले, साबिर और मोजज़ात के मालिक थे। लोग फिर शिर्क में डूबने लगे तो उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया कि बुत छोड़ दो और सिर्फ अल्लाह को पुकारो। एक बार एक गरीब औरत का बेटा मर गया। वो रोती हुई इलियास अलैहिस्सलाम के पास आई। उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने मुर्दा बे बच्चे को जिंदा कर दिया। लोग हैरान रह गए और ईमान ले आए। दूसरा मोजज़ा ये कि एक नदी का पानी जहरीला था जो पीता मर जाता। इलियास अलैहिस्सलाम ने उसमें नमक डाला और दुआ की। पानी मीठा और साफ हो गया। लोग खुश होकर पीने लगे। तीसरा मोजज़ा ये कि एक बादशाह ने उन्हें कैद करने की कोशिश की। इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बादशाह के हाथ सख्त हो गए। जब बादशाह ने तौबा की तो इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से हाथ फिर ठीक हो गए। उनकी जिंदगी सिखाती है कि नबी का वारिस बनना भी अल्लाह की बड़ी बरकत है। दुआ से मौत वापस आती है और जहर मीठा हो जाता है। अल्लाह हमें इलियास अलैहिस्सलाम जैसा इल्म और दुआ की ताकत अता फरमाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक बुजुर्ग नबी और बनी इसराइल के इमाम थे। वो बुढ़ापे में भी अल्लाह के घर में इबादत करते, लोगों को तौहीद सिखाते और अदल के साथ फैसले करते थे। उनकी अहलिया बांझ थीं और दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा, तू ही सुनने वाला है। एक दिन वो मेहराब में नमाज पढ़ रहे थे कि फरिश्ता आया और खुशखबरी दी कि अल्लाह तुम्हें बेटा अता करेगा और उसका नाम याहिया होगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हो गए कि मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बूढ़ा हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने फरमाया, अल्लाह के लिए सब कुछ आसान है। फिर 3 दिन तक वो बोल नहीं सके, सिर्फ इशारों से बात करते रहे। कुछ देर बाद हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वो छोटी उम्र से ही इल्म, हिल्म, अल्लाह का खौफ और पाकीज़गी वाले नबी बने। बनी इसराइल में गुनाह बढ़ गए थे। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने लोगों को रोका और गुमराही छोड़ने को कहा तो जालिम लोगों ने उन्हें आरी से चीर कर शहीद कर दिया। मगर उनकी दुआ कबूल हो चुकी थी। अल्लाह ने बूढ़े वालदैन को नेक नबी अता फरमाया। ये वाकया सिखाता है कि उम्र या बांझपन अल्लाह के लिए रुकावट नहीं। दिल से दुआ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है और नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह हमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसा यकीन, सब्र और दुआ अता करे। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक नबी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सच्चे वारिस थे। वो बूढ़े बाप और बांझ माँ से पैदा होना खुद एक बड़ा मोजज़ा था और उनका नाम भी अल्लाह ने खुद रखा, यहया यानी जिंदा रहने वाला। वो बचपन से ही इबादत गुजार, नर्म दिल, पाक दामन और खौफ खुदा रखने वाले थे। वो सादा लिबास पहनते थे, कम खाते, कम सोते, ज्यादा इबादत करते और लोगों को तौहीद, सच्चाई और गुनाहों से बचने की तालीम देते। अल्लाह ने उन्हें हिकमत, बसीरत, इल्म और पाकीज़गी अता की।
वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी देते थे। जब जालिम बादशाह हेरोद ने अपने भाई की बीवी से नाजायज़ शादी की तो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने बेखौफ होकर कहा, ये गुनाह है, उसे छोड़ दो। बादशाह नाराज़ हुआ। औरत ने बदला लेने की ठान ली और हुक्म दिया कि याहिया अलैहिस्सलाम का सर काट कर लाया जाए। वो सोने की थाली में शहीद कर दिए गए, मगर उनका मुबारक सर भी जुबान हक से कहता रहा कि ये जुल्म है। अल्लाह ने उनकी रूह को बुलंद मकाम अता फरमाया। ये वाक़या सिखाता है कि हक बोलने के लिए जान भी देनी पड़े तो डरना नहीं चाहिए। पाकीज़गी, सादगी और सच्चाई ही असल दौलत है। अल्लाह हमें हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम जैसी जुर्अत और साबित कदमी दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबर थे। उनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन, इबादत गुजार और अल्लाह की चुनी हुई बंदी थीं। अल्लाह ने उन्हें बाप के बगैर बेटा अता किया। कुन फरमाया तो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। वो गोद ही में बोले और कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार मोजज़े अता किए। वो मिट्टी का परिंदा बनाते और अल्लाह के हुक्म से उसे जिंदा कर देते थे। पैदाइशी अंधों को बीनाई देते, कोड़ियों को शिफा देते, बीमारों को ठीक करते, मर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते थे। वो बनी इसराइल को तौहीद, मोहब्बत, नरमी, सच्चाई और अदल की तालीम देते थे। कहते थे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, गुनाह छोड़ो, गरीबों, यतीमों और कमज़ोरों की मदद करो। यहूदी उलमा ने हसद के बायस बादशाह के सामने झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया और दुश्मनों के लिए एक शख्स को उन जैसा बना दिया गया। उसी को सूली पर लटकाया गया। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान न पहुंचा। वो क़यामत से पहले दोबारा आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, जुल्म ख़त्म करेंगे और अदल कायम करेंगे। फिर दुनिया में उनकी वफ़ात होगी। ये वाक़या सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत बेमिसाल है। मोजज़े उसी के इख्तियार में हैं। वना के रास्ते पर साबित कदम रहने वालों को अल्लाह दुनिया और आखिरत में इज्जत देता है। अल्लाह हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नर्म दिल, सच्चा और रहमत वाला बना दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये नाम ज़बान पर आता है तो दिल में एक ठंडी रोशनी उतरती है, आंखें भीग जाती हैं, रूह कांप उठती है। जैसे मक्का की गारे हिरा में वो पहला लम्हा दोबारा जिंदा हो जाता है, जब पहली वही उतरी थी और पूरी कायनात ने सांस थाम लिया था। वो रहमतुल लिल आलमीन, यतीम बच्चा जो माँ की कब्र पर खड़ा रोया था, वो नौजवान जो हिरा की अंधेरी गार में अपने रब को पुकारता था, वो नबी जो ताइफ की गलियों में लहू लिहान हुआ मगर दिल में बद्दुआ नहीं, दुआ थी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। ये नहीं जानते उनका चेहरा चांदनी रात के चांद से ज्यादा रोशन, हल्की सी लाली आंखों में समंदर जैसी गहराई, चलते तो जमीन खुशबू से भर जाती, बादल साया करते, परिंदे गिर्द उड़ते। उनका लिबास सादा और पाकीज़ा, कभी महीनों तक एक ही कपड़ा पहने रहते, खुद कपड़े सीते, जूते ठीक करते, घर के कामों में अज़वाज की मदद करते। तकब्बुर का नाम न था। दुनिया के बादशाह कदमों में आए तो उन्हें भी जमीन पर बिठाया। उनकी गुफ्तगू का हर लफ्ज़ नूर, हर जुमला रहमत, हर बात हिदायत। एक गुलाम को आज़ाद किया तो फरमाया, आज से तो मेरा भाई है। एक यहूदी का जनाजा गुजरा तो एहतराम में खड़े हो गए और फरमाया, क्या वो इंसान नहीं? फतह मक्का का दिन आया तो वो शहर जिसने उन्हें निकाला था आज उनके कदमों में था, मगर उनकी जबान पर सिर्फ ये था, जाओ तुम सब आज़ाद हो। न बदला न सज़ा, सिर्फ माफ़ी, सिर्फ करम। उनकी वफ़ात का वक्त आया तो सर्रे उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सीने पर था। लबों पर आखिरी सोच, आखिरी चाहत, आखिरी फरियाद, अल्लाह रफ़ीक़ आला। पूरी कायनात जैसे दोबारा साकित हो गई। आज भी जब कोई दुरूद पढ़े वो जवाब देते हैं, जब उनका नाम लिया जाए वो मुस्कुराते हैं, जब उनकी सुन्नत पर चला जाए तो वो साथ होते हैं। वो सिर्फ नबी नहीं, रहमत थे। वो सिर्फ इंसान नहीं, नूर थे। वो हमारे नहीं, हम उनके हैं। अल्लाह हमें उनकी सच्ची मोहब्बत, उनकी शफात और उनके कुर्ब की सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।